عام طور پر ذبح کرنے میں جو معاونت کرتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور تعویل کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب ارے کپڑا خراب ہو جائے گا، چھیٹا پڑ جائے گا۔ بھائی کپڑا خراب ہو جائے گا، ہم اس کو دھو لیں گے، پاک ہو جائے گا، داغ نہیں چھوٹے گا، صابن لگا لیں گے، پاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ گوشت اگر اس کی گردن کو بہت زیادہ دبا دینے کی وجہ سے اندر خشک ہوا، جذب ہوا، تو وہ گوشت پاک نہیں ہو سکے گا۔ وہ 20,000 روپے 15,000 روپے کا جانور وہ برباد گیا، اور قربانی بھی ہمارے ذمے سے ساقط نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین گرامی اور میرے دینی بھائی، یہ آج ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، کل سنیچر 8، اتوار 9 یوم عرفہ، اور سوموار کو یوم النحر ہے، عید قرباں کا دن ہے۔ قربانی اسلامی احکامات میں سے ایک بہت ہی محترم بالشان اور عظیم الشان عبادت ہے، جس کا کوئی دوسرا بدل نہیں۔ اس کے احکامات بھی بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، اور سالوں تو عید قربہ سے پہلے مسلسل کئی جمعے اس سے متعلق بیانات ہوتے رہتے تھے، اور قربانی کے مسائل اور اس کے احکامات بیان کیے جاتے رہتے تھے۔ بعض اسباب کی بنیاد پہ گزشتہ ہفتہ بیان نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے الیکشن کی ہمہ ہمی تھی، اور اس سے متعلق باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں۔ اب جبکہ عید قربہ میں صرف 2 دنوں باقی رہ گیا ہے، اور یہ قربانی سے پہلے آخری جمعہ ہے، اب اسی آخری جمعہ کے اندر حتی الامکان قربانی کے مسائل، اس کے احکامات کو سمیٹ کر کے، مختصر کر کے، موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینے کی کوشش کروں گا۔ اختصار کے باوجود کبھی امکان ہے کہ کچھ وقت زیادہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کہ بہرحال احکامات اور مسائل کا جاننا اور سمجھنا، اور اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور عبادت کو شیطانی اثرات سے اور اپنی عبادت کو فاسد ہونے اور خراب ہونے سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ ہر انسان کا، ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ تم جو قربانی کرتے ہو تو تمہاری قربانی کا گوشت، اس کا پوست، اس کا خون اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عبادتیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں، مختلف طرح کی عبادتیں ہیں۔ بعض صرف بدنی عبادت ہے، جیسے نماز، صرف جسمانی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ روزہ، اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ بعض عبادتیں خالص مالی ہیں، جس میں مال خرچ ہوتا ہے، بدن کو کوئی مشقت پریشانی نہیں ہوتی، جیسے زکوٰۃ اور صدقات ہیں، اس کے اندر مال خرچ ہوتا ہے۔
اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے حج ہے۔ حج کے اندر آدمی کو طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، پیدل چلنا ہے، جسم کو مشقت میں ڈالنا ہے، منی جانا ہے، عرفات جانا ہے، واپس آنا ہے، کنکری مارنا ہے، یہ سب جسمانی مشقتیں ہیں اور مال بھی اس کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ سفر کی صعوبتیں ہیں، سفر کے مصارف ہیں، سفر کے لمبے اخراجات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا ہے تو قربانی بھی دینی ہوتی ہے۔ تو یہ عبادت ایسی ہے جس میں مال بھی خرچ ہوا اور جان میں بھی مشقت میں ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، یہ مالی عبادات میں سے ہے، مالی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز اپنے بندوں کو آزمانے کا مختلف طریقے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا ہے، وراء الورا ہے، سب سے عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ اغنی الاغنیاء ہے۔ دنیا میں سارے بادشاہ کتنے ہی بڑے سے بڑے کیوں نہ ہوں، وہ محتاج ہیں، اپنے وزراء کے محتاج۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کا زمانہ تھا، وہ کر و فر جو ہمارے بادشاہوں کے حکمرانوں کے ہوا کرتے ہیں، تمام تر کر و فر کے باوجود سینکڑوں سبھائیں انہوں نے کی، سینکڑوں اسفار انہوں نے کیے، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، خوشامدیں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں ووٹ کی، محتاج ہے سارا کا سارا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ہے، وہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ انہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ وہ آسمان و زمین اور پوری کائنات کا نظام تنے تنہا سنبھالتا ہے، اور اس کا سارا کا سارا انتظام تنے تنہا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سارا انتظام سنبھالنا اس کو تھکاتا نہیں ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور یہ آسمان و زمین اور پوری کائنات کا نظام سنبھالنا اور اس کا انتظام و انصرام کرنا اسے تھکا نہیں دیتا، اسے پریشان نہیں کر دیتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نرادھار ہے، سمندر ہے جو بہہ رہا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس کے اندر اس کے جانور مر رہے ہیں یا لوگ اپنے تعفن اور گندگیاں اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہماری گندگیاں نالیوں سے ہو کر کے ندیوں میں پہنچتی ہیں، ندیوں سے ہو کر کے دریاؤں میں جاتی ہیں، دریاؤں سے ہو کر کے سمندروں میں پہنچ رہی ہیں، لیکن سمندر ایسا نرادھار ہے، بے نیاز ہے کہ ان کی گندگیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ سارے کے سارے کو بھسم کر دیتا ہے اور سب کو پاک کر دیتا ہے۔ نہ اس کے پانی کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، نہ سڑان آتی ہے، نہ بدبو آتی ہے، نہ تعفن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ایسا بے نیاز، اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اس کے آگے سر جھکائے تو وہ بڑا کہلائے گا، اور سر نہ جھکائے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا معاذ اللہ۔ لیکن اس نے ہمارے اور آپ کی آزمائش کے لیے ہمارے اوپر عبادتیں فرض کی۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت قربانی کی عبادت بھی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ نماز کو فرض کیا، لیکن نماز کے لیے کچھ شرائط بیان کیے، کچھ ارکان بتلائے۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا بدن پاک ہو، آدمی کا کپڑا پاک ہو، جس جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، آدمی باوضو ہو، اور نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ اور نجاست حکمیہ، نجاست حقیقیہ، ان سبوں سے بالکل پاک صاف ہو، غسل کر کے آئے، باوضو ہو کر کے آئے، طہارت اور پاکی کے ساتھ آئے، اور استقبال قبلہ کرے، قبلہ کی جانب متوجہ ہو۔
और उसके आज़ाए मस्तूरा, जिस्म का वो हिस्सा जो दूसरों के सामने और किसी के सामने खोलना जायज नहीं है, मर्दों के लिए नाक से लेकर के घुटने के नीचे तक और औरतों के लिए सर से लेकर के पैर तक, ये सिवाय हथेली और चेहरे के बाकी सबों का ढांकना और छिपाना फर्ज है। नमाज के अंदर ये चीजें फर्ज हैं। नियत का होना, फिर नमाज पढ़े तो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़े, ये नहीं कि हम अपनी तबीयत से कोई ईजाद कर लें और गढ़ लें किसी इबादत को। जोहर की नमाज 4 रकत है और जोहर ही के वक्त में जुमा के दिन जब जुमा की नमाज पढ़ते हैं तो 2 रकत है। यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। बंदे को चूं चेरा करने की कोई हाजत और जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने मगरिब 3 रकत क्यों रखी और ईशा की 4 रकत क्यों रखी और फजर की सिर्फ 2 रकत क्यों रखी, जबकि फजर का वक्त बहुत फारिग वक्त है और उस वक्त आदमी जब नींद से बेदार होकर के 6 घंटे 5 घंटे सो करके उठता है तो पूरी तवानाई के साथ और जोश और जज्बे के साथ और इंतहाई फरहत और इंबिसात के साथ उठता है, तो उस वक्त तो 4 के बजाय 8 रकतें होनी चाहिए। आदमी की अक्ल के ऊपर मौकूफ नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, लो कान दीन बिर्राय, अगर दीन की बुनियाद अक्ल पर होती, लकान बातिनुल खुफ़ औला बिल मसह मिन ज़ाहिरिहिमा, तो खुफ़ैन, जाड़े के जमाने में लोग खुफ़ैन पहनते हैं ना, तो खुफ़ैन फरमाते हैं कि खुफ़ैन के निचले हिस्से पर मसह करना ऊपर वाले हिस्से पर मसह करने से ज्यादा बेहतर होता। अक्ल का तकाजा यह है कि इसलिए कि गंदगी लगने का अंदेशा तो निचले हिस्से में होती है, खुफ के मसह के जरिए से उसको साफ करना चाहिए। लेकिन राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरिहिमा ख़ुतूतन बिल असाबि, लेकिन मैंने अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप खुफ़ैन के ऊपर मसा फरमाते थे, इस तरीके से निशानात खींचते हो। तो अक्ल की इबादत और दीन की बुनियाद अक्ल पे नहीं है कि आदमी अपने अक्ल से जो चाहे गढ़ ले। इसी तरीके से नमाज के अंदर अरकान उसके तकबीर तहरीमा कहे, क़याम करे, क़िरात करे, रुकू करे, सजदा करे, कायदा अखीरा रुकन करे, और अगर ये कोई रुकन छूट गया, मसलन क़िरात ही छोड़ दिया, तकबीर तहरीमा छोड़ दिया, रुकू छोड़ दिया या कोई सजदा छोड़ दिया, तो सिर्फ सजदा सहव से उसका खसारा नहीं पूरा होता। ये अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर जो साहिब निसाब लोग हैं, साहिब निसाब का मतलब है, एक तो साहिब निसाब वो है जिनके ऊपर ज़कात फर्ज होती है। ज़कात फर्ज होती है उन साहिब निसाब लोगों के ऊपर जिनके पास हवाइज असलिया, जरूरियात असलिया से ज्यादा 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो या इसके बकदर रुपया पैसा हो या तिजारती सामान हो, तिजारती सामान हो, तो अब उसके ऊपर इस फाजिल पैसे के ऊपर साल भी बीत जाए, साल बीत जाए, और या फिर जानवर वो पालता हो, बेतहाशा जानवर पालता है, भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय, बैल वगैरह, और वो जानवर साल का बेशतर हिस्सा सरकारी चरागाह में चरते हो, तो इस तरह के मालों के ऊपर यानी सोने, चांदी, रुपया, पैसा, दराहिम, दनानीर, तिजारती सामान किसी भी तरह का हो, कपड़े का हो, जूते का हो, बर्तन का हो, बासन का हो, किसी भी चीज का, और या फिर सबाइम, ये 4 तरह के माल हुए, इनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। जबकि उस माल के ऊपर साल गुजर जाए, 1 साल हो जाए, तब उसके ऊपर ज़कात का मुतालबा है। लेकिन कुर्बानी के अय्याम में 10वीं, 11वीं, 12वीं ज़िलहिज्जा को अगर हमारे पास इतना माल है, इतना पैसा है, जिसमें हम 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हैं, उस दिन अगर हम इतने के मालिक हैं और वो हमारी जरूरियात जिंदगी से फाजिल है, तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब
हम एक तो ये है वजूब, दूसरी चीज ये है कि कुर्बानी के जानवर भी शरीयत ने मुतय्यन कर दिए हैं। हम अपने अक्ल से जानवर की कुर्बानी नहीं दे सकते। ऊंट की कुर्बानी हो सकती है, गाय बैल भैंस की कुर्बानी हो सकती है, भेड़ बकरी दुम्बे की कुर्बानी हो सकती है। अगर कोई आदमी चाहे कि बकरी ही के बिलमुकाबिल तो हरन भी है, शुतुरमुर्ग भी है, उसकी कुर्बानी कर ली जाए, तो हरन की शुतुरमुर्ग की कुर्बानी हम अपनी अकल से नहीं दे सकते। नील गाय की घोड़पड़े की कुर्बानी हम नहीं दे सकते, गांव खर की कुर्बानी हम नहीं दे सकते। अपनी तबीयत से कि गाय के और बैल के बराबर का नील गाय भी है, घोड़पड़ा भी है, उसकी कुर्बानी दे दें तो ये दुरुस्त नहीं है। ये शरीयत ने इसको मुतय्यन कर दिया है। फिर इसके अंदर भी कैटेगरी, उसके अंदर उम्र की तायीन, यानी अगर बकरे की दे रहे हैं तो बकरा पूरे 1 साल का होना चाहिए। यहां तक कि उलमा फुकहा ने लिखा कि 1 साल से 1 दिन का भी अगर कम होगा, 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं। यहां तक कि अगर कोई जानवर पिछले साल 11 ज़िलहिज्जा को पैदा हुआ था, 11 ज़िलहिज्जा को, और इस साल हम उस जानवर की 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसके साल पूरा होने में 1 दिन कम है, कुर्बानी दुरुस्त नहीं हो। गाय बैल भैंस वगैरह 2 साल का हो, ऊंट 5 साल का हो, ये मुतय्यन फरमा दिया। इसी तरीके से जो साहिब निसाब है उसके ऊपर तो फर्ज है, और जो हमारे आबा अजदाद में से जो लोग मर चुके, इंतकाल फरमा चुके, जाहिर है इंतकाल जो कर चुका अब अहकामात दुनियाविया उसके ऊपर नाफिज नहीं होते। हमारे वालिद हमारी वालदा का इंतकाल हो गया, हमारे दादा दादी नाना नानी का इंतकाल हो गया, जाहिर है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लिहाजा दुनिया के अहकामात फर्ज का वजूब का ये सब अब उनके से वाबस्ता नहीं है। लिहाजा उनके जानिब से अगर कोई कुर्बानी करता है तो ये नफली कुर्बानी है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कुर्बानी हमारे ऊपर वाजिब है और हम अपने बजाय अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से कर देते हैं, या इसी तरीके से अपनी बीवी के ऊपर, हमारे ऊपर वाजिब है, बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है, लेकिन बीवी के ततीब खातिर के लिए, उनकी दिलबस्तगी के लिए, उनका दिल खुश्क रखने के लिए हम उनकी तरफ से कर देते हैं। बिलाशुबा उनकी तरफ से भी करना चाहिए, लेकिन अपना फरीजा छोड़ करके नहीं, अपना फरीजा छोड़ के नहीं। अपना फरीजा तो बहरहाल अदा करना है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी की तरफ से कर देता है जबकि बीवी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो उनकी तरफ से नफली कुर्बानी का सवाब उनको मिलेगा। लेकिन हमने अपनी कुर्बानी छोड़ दिया तो यह ऐसे ही हो गया जैसे आप जुमा की फर्ज नमाज या जोहर की नमाज छोड़ दें और नफिल नमाज पढ़ लें। तो नफिल नमाज पढ़ लेने की वजह से नफल का सवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्ज नमाज जो छोड़ा है उसका अजाब, जो लोग तबलीग से वाबस्ता हैं और किताबों के बयान वो की तालीम में बैठते हैं, उन लोगों ने सुना होगा कि एक फर्ज नमाज बाजमात छोड़ने से एक हुक्म यानी 88 करोड़ या 80 करोड़ साल के अजाब का उसको वो का अजाब होता है उसको। तो फर्ज को छोड़ने का अजाब ये है। और तीसरी चीज जो बहुत ही अहम है वो ये कि इस्लाम सफाई को पसंद करता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह नज़ीफ है और नज़ाफत को पसंद करता है। एक हदीस में फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी सफाई नज़ाफत ये निस्फ़े ईमान है, आधा ईमान है। और चौथी चीज ये
कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी से छोटी बात आदमी के घर में तकरीबात होती हैं, अकीका हो रहा है तो खतना हो रहा है तो मंगनी हो रही है तो छट्टी हो रही है तो ये हो रहा है वो रहा, फौरन उसकी वीडियोग्राफी करके और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लड़के, बददिमागों की भी कमी नहीं है। जैसे गालिब ने कहा था ना कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं, तो इसी तरीके से यहां हम लोगों के यहां बददिमागों की कमी नहीं है। अब वो कबाब बना रहे हैं, उसको गूंथ रहे हैं, उसमें मसाला मिला रहे हैं और 12-12, 14-14 सीख जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं और इसको मीडिया में, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। भाई, क्या हम अब इस बात को पसंद करते हैं कि हमारे सामने, हमारे मकान के सामने कोई गैर मुस्लिम काफिर अंग्रेज का बच्चा वो दुकान खोल ले खिंजीर के गोश्त की और वो खिंजीर को वहां काटे और खिंजीर का गोश्त फरोख्त करे? क्या हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? इसी तरीके से हमें और आपको इस बात का लिहाज रखना चाहिए। हम जहां रहते हैं वहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ अक़दार और रिवायात का यहां का यह गहवारा है। लिहाजा ऐसा कोई अमल न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक तो यह कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें और दूसरी चीज ये कि गंदगी इधर उधर आम चलने की राह की जगहों पे न डाला करें और सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को न डालें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और तकलीफ के मासिवा यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने यहां डाला और दूसरी जगह जहां हमारे कमजोर भाई बहुत ही मामूली मुख्तसर तादाद में रहते हैं और दूसरों की अक्सरियत है गालिब, और उन्होंने उनके साथ कुछ छेड़खानी की और उसके बाद वो राइट और फसाद की शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर हमारी माँ और बहनों बेटियों की इज्जत और आबरू के लाले पड़ जाए, तो यह बतलाइए कि इसका जिम्मेदार दरअसल कौन हो? ये चंद बातें थी अर्ज करने की। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को समझ आता फरमाए। और एक आखिरी और बुनियादी चीज वो भी कि भाई ज़बह जो होता है इसके अंदर 3 रगों का कटना जरूरी है। और ज़बह का असल मकसद क्या है? असल मकसद है दमे मसफू, रगों के अंदर दौड़। एक तो खून है जो गोश्त के अंदर है, गोश्त का खून है और वो गोश्त बनने के लिए गोया तैयार है। वो हर तरह का, इस तरह का गोश्त वाला खून हर थोड़े थोड़े दिनों में वो गोश्त बनता चला जाएगा, गोश्त के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। और एक खून है रगों के अंदर दौड़ने वाला खून, दमे मसफू जिसको कुरान में कहा गया है। कुरान में फरमाया गया कि 3 बुनियादी हराम और नापाक चीजें जो इंतहाई खबीस और नापाक हैं। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइनी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन, मुर्दार और दमम मसफूहन, या रगों में दौड़ने वाला खून दमे मसफू, और लहम खिंजीरिन, या सूअर का गोश्त, फ़इन्नहु रिज्सुन, ये पलीद है, नापाक है, इंतहा दर्जे का नापाक। हम जो ज़बह करते हैं जानवर, अगर अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़बह करेंगे तो वो भी मुर्दा है। अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह करें और वो खून निकल गया तो दमे मसफूह निकल गया, अब वो गोश्त पाक हो गया। और अगर हमने ज़बह करते वक्त उसकी गर्दन को इस तरीके से दबाया कि रग कटने के बावजूद रगों को दबा देने की वजह से बहुत ज्यादा दमे मसफूह अंदर गोश्त में जज्ब हो गया, खुश्क हो गया, या अगर बहा तो थोड़ा बहुत बहा, तो ऐसी सूरत में वो गोश्त नापाक हो गया, वो पूरी कुर्बानी हराम हो गई, नाजायज हो गई, उसका गोश्त का खाना जायज नहीं।
आम तौर पर ज़बह करने में जो मुआवनत करते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं और तावील क्या करते हैं, मौलाना साहब अरे कपड़ा खराब हो जाएगा, छींटा पड़ जाएगा। भाई कपड़ा खराब हो जाएगा, हम इसको धो लेंगे, पाक हो जाएगा, दाग नहीं छूटेगा, साबुन लगा लेंगे, पाक हो जाएगा। लेकिन वो गोश्त अगर उसकी गर्दन को बहुत ज्यादा दबा देने की वजह से अंदर खुश्क हुआ, जज्ब हुआ, तो वो गोश्त पाक नहीं हो सकेगा। वो 20,000 रुपए 15,000 रुपए का जानवर वो बर्बाद गया और कुर्बानी भी हमारे जिम्मे से साकुत नहीं। इसलिए इन बातों का ख्याल रखा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।